السلام علیکم. آج 5 بجے میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان. بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے F11 مرکز میں رہائشی عمارت میں سلنڈر پھٹ گیا. دھماکے کے نتیجے میں فلیٹ کے شیشے ٹوٹ گئے. تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے عثمان مظفر سے. اپڈیٹ کیجیے گا عثمان مظفر, یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ جی بالکل, F11 مرکز میں رہائشی عمارت میں جو ہے سلنڈر دھماکہ ہوا ہے. سلنڈر دھماکے سے فلیٹ کے شیشے ٹوٹ گئے اور گھر کا سامان ٹوٹ گیا, جبکہ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جو ہیں موقع پر پہنچ گئی, لیکن کسی قسم کا اس وقت تک بتایا جا رہا ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا. جی اسلام آباد F11 مرکز کی رہائشی عمارت میں سلنڈر دھماکہ, اس سے اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے عثمان مظفر. آپ کا بہت شکریہ. ادھر لاہور کے علاقے سندر میں کیمیکل فیکٹری میں آگ لگ گئی. ریسکیو ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں. تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے غضنفر خان سے. اپڈیٹ کیجیے گا غضنفر, اب تک قابو پا لیا گیا یا اسٹل کوشش جاری ہے؟ جی عمران, یہ آگ جو ہے 1 گھنٹہ قبل جو ہے سندر میں واقعہ فیکٹری میں جو ہے وہ لگی تھی, اور ریسکیو کے مطابق یہ فیکٹری جو ہے کیمیکل مٹیریل اس کے اندر تھا, جہاں پہ اس کی کیمیکل کی جو ہے پروڈکشن کی جاتی تھی. وہاں پر جو ہے بائلر براسٹ ہونے سے جو ہے وہ آگ لگی ہے, اور آگ لگنے کے باعث جو فیکٹری کی چھت ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہے, اور ریسکیو کی تقریباً 10 سے زائد گاڑیاں جو ہے وہ کنواں پر موجود ہیں. پولیس کی جانب سے تمام راستے کو کلیئر کرایا جا رہا ہے تاکہ ریسکیو کی جو گاڑیاں ہیں وہ جلد سے جلد یہاں پر پہنچ سکیں. تاہم 1 گھنٹے سے زائد کا وقت بیت چکا ہے, آگ پر قابو نہیں پایا جا رہا, لیکن ریسکیو 1122 کا کہنا ہے کہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور جلد جو ہے وہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی لاہور میں سندر کے علاقے میں کیمیکل فیکٹری میں آتش زدگی, فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے میں مصروف. اپڈیٹ کر رہے تھے غضنفر خان, بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے کمشنر کراچی کو 1 ہفتے میں نسلہ ٹاور کی عمارت کو جدید ٹیکنالوجی استعمال کے ذریعے گرانے کا حکم دے دیا. عدالت نے عمارت میں بجلی اور پانی کے کنیکشنز کو 27 اکتوبر تک منقطع کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف کراچی رفعت سعید سے. جی رفعت سعید, کیا تفصیلات ہیں؟ میرے پس منظر میں نظر آنے والا ہے نسلہ ٹاور, جس کے مقدمے کی سماعت آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی رجسٹری میں ہوئی, جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے یہ کہا کہ اس ٹاور کو 1 ہفتے میں منہدم کر کے فوری طور سے رپورٹ جمع کروائی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کمشنر کراچی کو یہ ہدایت کی کہ 27 اکتوبر تک اس جو بلڈنگ ہے اس کے تمام جو کنیکشنز ہیں بجلی کے, پانی کے, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے, سارے منقطع کیے جائیں اور اس کو گرانے کا کام کیا جائے, اور اسے جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے بلاسٹ کر کے اسے منہدم کیا جائے اور اس کی رپورٹ اگلے ہفتے سپریم کورٹ میں جمع کروائی جائے. اس کے بعد اس کے مکینوں نے سپریم کورٹ میں بات کرنے کی کوشش کی, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے یہاں کے مکینوں کو بات کرنے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا اب مسئلہ اس کے صرف گرائے جانے کا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کمشنر کراچی سے بات پرس کی کہ اس میں تاخیر کیوں ہوئی اور اب تک اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا, وہ 1 ہفتے میں اس کی رپورٹ جمع کروائیں. جی جیکب آباد میں مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ شخص نے اپنے بچے فروخت کرنے کے لیے بازار لے آیا. تحصیل ٹھل سے تعلق رکھنے والے لیاقت سرکی کا کہنا ہے کہ بے روزگاری کے باعث مکان کا کرایہ ادا نہیں کر سکتا. مہنگائی نے زندگی اجیرن کر دی ہے. بچوں کو 1 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں. حالات سے تنگ آ کر اپنے بچے فروخت کرنے کے لیے بازار لایا ہوں. اگر کسی نے مدد نہ کی تو اہل خانہ سمیت خودسوزی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا. ضلع ہنگو میں اپوزیشن جماعتیں مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج ہے. مزید جانیں گے طارق مغل کی اس رپورٹ میں. راول بھٹو زرداری کی کال پر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ہنگو نے بھی ہوش ربا مہنگائی اور غربت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی. ریلی کے شرکاء نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی منارٹی کے صوبائی صدر پیر نصیب چند, پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ہنگو کے صدر پیر ابن علی اور سابق امیدوار قومی اسمبلی سید الفت حسین نے کہا کہ موجودہ حکومت نے عوام سے روٹی کا نوالہ تک چھین لیا اور پاکستان کی اقتصادی حالت انتہائی خراب ہے, جس کی ذمہ دار کرپٹ اور نااہل حکومت ہے.
मुकर्री ने मुतालबा किया कि मौजूदा हुक्मरान कौम पर रहम करें और इक़्तिदार से अलहदा हो जाएं। उन्होंने कहा कि हर तबका फिक्र आज मौजूदा महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज है। कैमरामैन मंजूर खान के साथ तारिक मुगल, आज न्यूज हंगू। मौजूदा हालात में महंगाई का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। अवाम का क्या कहना है? इस वक्त कोहाट के तिजारती मरकज में हमारे नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहर के सबसे बड़े तिजारती मरकज में मौजूद हूँ और महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो आवाम का ये कहना है कि घी, चीनी, आटा, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस, तमाम चीजें आसमान से बातें कर रही हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे। महंगाई तो जला दिया लोगों को, जितने मुसलमान हैं वो बस जा रहे हैं। जो 700 का तेल था वो 1450 का पहुंच गया। घी 350 रुपए का किलो हो गया। गरीब लोग कहाँ जाए? जी आपने बुजुर्ग की बात सुनी, उनका ये कहना है कि गरीब जाए तो आखिर कहाँ जाए। मैं दिल का मरीज हूँ, जो दवाई मैं 80 रुपए का पैकेट लेता था अब वो 150 से जायद हो चुका है। रायवंड में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटा, चीनी, घी, दालों समेत दीगर अशिया की मुंह मांगी कीमतें वसूल की जा रही हैं। तफसीलात जानेंगे आसिफ नईम शेख की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा से रायवंड के शहरियों की चीखें निकल गई हैं। तेल, घी, चीनी, आटा, दालों समेत तमाम अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बढ़ती हुई महंगाई पर रायवंड के शहरियों ने आज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, आटा तो आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, अवाम जाए तो किस तरफ जाए। 160 रुपए किलो सरसों का तेल था, अब 350 रुपए किलो है। एक दिन में मैंने दिहाड़ी लगाई, अभी मैंने सब्जी ले ली तो मैं घर में क्या करूँ, मेरे घर में आटा नहीं है। आटा लेने चाहिए, 100 रुपए किलो आटा हुआ है, तो क्या लें और क्या खाएं। कि जिस मजदूर की 500 रुपया दिहाड़ी वो घ्यो ले आवेगा, आटा ले जाएगा, कि बिल तारेगा, की करेगा, कि दवाई लगेगा बच्चों वास्ते। इतनी महंगाई, 2300 रुपये मन आटा यार को गल करना है। देखें 20,000 सैलरी लेने वाला बंदा वो 40-50 हजार का खर्चा कैसे कर सकता है। लिहाजा जो हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत ने महंगाई के तूफान पर काबू ना पाया तो आम आदमी का गुजर बसर मजीद मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन मलक अली के साथ आसिफ नईम शेख, आज न्यूज रायवंड। बढ़ती हुई महंगाई पर भलवाल के मजदूर भी सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद सागर की इस रिपोर्ट में। जी बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मजदूर मार्केट में, जहाँ पर मजदूर मजदूरी के लिए आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि महंगाई के हवाले से इनका क्या कहना है। चीनी है वो 120 रुपए 5 रुपए हो गई, घी 350 तो हो गया। तो गरीब आदमी की मजदूरी वो 700 रुपया दिहाड़ी है। महंगाई इस तरह सर बहुत ज्यादा चली गई। 350 किलो गेहूं हो गया, 120 रुपए किलो चीनी हो गई। ये कंट्रोल करने बड़ी मुश्किल है। इमरान खान तो कंट्रोल नहीं होंगी। लिहाजा हुकूमत चेंज होवे तो कोई महंगाई का कंट्रोल हो सकता। इस टाइम जड़ा नहीं दाने ज मुल लईए तो सानू 2500 रुपये मान मिलते हैं। आटा सानू 3000 मिलन दिया। असी गरीब बंदे 700 रुपया साडी गरीबां दी दिहाड़ी है। 700 ने कुछ बनता पाया। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त समत में मरतब करे ताकि महंगाई कम हो और इन्हें 2 वक्त की रोटी मैसर आ सके। जी सवात में कस्साबों ने गोश्त की कीमत में खुद साख्ता 250 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। इंतजामिया गिरा फरोशों के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस हो गई। सवात से अनवर अंजुम की रिपोर्ट देखते हैं। स्वात में गरीब शहरी काई तो आखिर काई क्या। कसाबों ने गोश्त की कीमत में खुद साख्ता इजाफा करके गरीब के लिए गोश्त खाना मुश्किल तरीन बना दिया। जिंदगी की तमाम जरूरी अशिया रोज बरोज जो है ना हर हफ्ते में महंगा हो रही है। इसके साथ जो है ना गोश्त, सब्जियां, ये हड्डी वाली गोश्त जो है ना ये 650 और 700 का बिकता है। गोश्त 700 रुपए किलो है। मुर्गी 600 रुपए मुर्गी है। 350 पे मिल रहा था, अभी 600 पे मिल रहा है। गरीब आवाम किधर जाए। आटा 1500 पे मिल रहा है। चीनी 660 पे 560 पे मिल रहा है। गोश्त फरोशों ने 1 किलो हड्डी वाली गोश्त के दाम 400 से बढ़ाकर 600 रुपए और बगैर हड्डी वाली गोश्त फी किलो 500 से बढ़ाकर 750 रुपए कर दिए। गोश्त इसलिए महंगा हो गया है कि सारी पेट्रोल महंगा हो चुका है, गाड़ियों की किराए महंगी है, तो लिहाजा जानवर महंगे आते हैं इधर ही। तो हमारी जो अपनी ठेकेदार है वो हमें महंगे देते हैं, तो इसलिए हम लोगों को महंगे बेचते हैं इधर। स्वात में गोश्त फरोशों के मनमानी दामों पर स्वात इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अनवर अंजुम, आज न्यूज स्वात।
सखर में वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह और वजीर आला के मुशीर अरसलान इस्लाम शेख की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इसकी तफसीलात जमील मुगल की रिपोर्ट में देखते हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए वजीर आला सिंध की हिदायत पर सखर के वॉकिंग ट्रैक पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में वजीर तालीम सैयद सरदार अहमद शाह और वजीर आला के मुशीर बैरिस्टर अरसलान शेख ने अवामी मसाइल सुने, जिस पर सरदार अहमद शाह ने फौरी अहकाम जारी किए। शहरी मसाइल पर वजीर आला के मुशीर अरसलान इस्लाम शेख ने अवाम को मसाइल हल करने की यकीनदानी कराई। सखर में आबादी बढ़ने के साथ अवाम मसाइल का भी शिकार हो रहे हैं, मगर अवाम के बुनियादी मसाइल सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है। जमील मुगल, आज न्यूज, सखर। जेहलम में महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड पोलियो डे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। यूनिसेफ की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल पोलियो वर्कर्स में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। जी शहबाज भट्ट, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड पोलियो डे की मुनासबत से महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें पोलियो मुहिम के दौरान बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले पोलियो वर्कर्स में यूनिसेफ की जानिब से एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट पेश किए गए। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। कोई पोलियो का केस अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद नहीं है। लास्ट NID में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे में जो हमारा टारगेट फिक्स हुआ था, हमने उससे ओवर एंड अबव जाके 101% ये अचीव किया। और उसमें जिन लोगों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी हमें इस टारगेट अचीव करने में, जो ऑन ग्राउंड हमारा हेल्थ वर्कर है, जिसमें लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं और वैक्सीनेटर्स हैं, UCMOs हैं, उन सब में से बेस्ट परफॉर्मर्स को आज हमने यहाँ पे इनवाइट किया ताकि उन लोगों की एप्रिसिएशन और इनकरेजमेंट हो जो ऑन ग्राउंड इस नेशनल कॉज में अपना हिस्सा भरपूर। जी बिल्कुल, जिला जेहलम में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ और इस तकरीब का मकसद ये था कि जो पोलियो वर्कर्स हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए और उनमें आज सर्टिफिकेट पेश किए गए हैं। जी जलालपुर पीरवाला में गैस की लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तवील गैस लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसीलात मुजफ्फर अयाज ताहिर से जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। मौसम की तब्दीली आ चुकी है और सर्दियों की आमद है। अगर गैस की बात करें तो गैस का बहरान भी शुरू हो चुका है। जलालपुर पीरवाला की अगर मैं बात करूं तो जलालपुर पीरवाला में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पिछले 4 साल से गैस नहीं आ रही। अवाम शदीद परेशान है, खुसूसन जो खवातीन है वो शदीद परेशानी का शिकार है। मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। बिल्कुल यही बात है, गैस का मसले की वजह से बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जिसकी नाश्ता नहीं कर पाते, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक। आपसे अपील करते हैं कि गैस का इशू सॉल्व किया जाए ताकि बच्चे और खवातीन को मसला ना हो नाश्ता करने। बच्चे जब भूखे जाते हैं अफसोस भी लगा रहता है और दूसरा इनकी स्टडी सही नहीं हो पाती। हम टीचर्स खुद जब पढ़ा रही होते हैं, हमें भूख लगती है, हमें फील होता है कि हमें भूख लग रही है तो बच्चे कैसा फील करेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो सुबह के वक्त नाश्ता नहीं तैयार किया जाता, बच्चे हों या बड़े हों सब बगैर नाश्ते के जाते हैं। ये जो हमारा दरीना मसला है ये फौरी तौर पर हल किया जाए। खैरपुर में मेडिकल स्टोर्स पर गैर मयारी और जायदुल मयाद अद्वियात फरोख्त की जा रही हैं। सूरत हाल पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। तफसीलात वसीम सुमर बताएंगे। मैं लुकमान के एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूं कि खैरपुर शहर के अंदर कई मेडिकल स्टोर हैं जहां पर जाली अद्वियात का कारोबार जारी है। मेरे साथ एक कस्टमर भी मौजूद है, उनका कहना है कि मैं गुज़िश्ता 10 सालों से इस मेडिकल से मेडिसिन ले रहा हूं, जो मेडिसिन जाली दी गई थी, जिससे एक इनका साला गुर्दों की तकलीफ में मुब्तला हो गए, ये खुद बीमारी में मुब्तला हो गए। ये जो दवाएं मैंने इनसे ले ली है, ये इनको बोला भाई ये 2 नंबर हैं, इनने बोला नहीं सही है चाचू ले जाओ सही है। फिर मैंने क्या, मेरे गुर्दों पे मेरे साला है जो अभी मौत के कश्म है, उसकी दवाइयाँ मैंने इनसे ले ली है। वो अभी ये कह रहा है तो रात को मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, इसीलिए मैं ड्रग इंस्पेक्टर है सरदार वसाण उसको कल कॉल की। कई मेडिकल स्टोर पर जाली अद्वियात का कारोबार है, इन मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उनका यह भी मुतालबा है कि खैरपुर मेडिकल स्टोरों पर, कई मेडिकल स्टोर पर कोई भी फार्मासिस्ट नहीं है, कोई उनके पास अगर लाइसन है वो भी जाली है। एंटी करप्शन चेयरमैन ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है। जैकबाबाद में सिविल अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी से मुअम्मर शख्स ने अस्पताल के दरवाजे पर जान दे दी। तफसीलात बताने के लिए सिविल अस्पताल में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्बास मस्तूई। जी अब्बास, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, साईं सरकार की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि सिंध के सरकारी अस्पतालों में इलाज की जो सहूलियातें हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकबाबाद की सरकारी अस्पताल पर, जहां पर ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये उमर रसीदा जो शख्स है इसकी लाश पड़ी हुई है। ये उमर रसीदा शख्स गुज़िश्ता 15 दिन पहले वनफा मददगार जो पुलिस थी उसको यहाँ लेकर अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन अस्पताल अमले और एमएस की न्यायालय की वजह से इस जो उमर रसीदा जो शख्स है उसको एडमिट नहीं किया गया। अस्पताल के गेट पर ही तड़प तड़प कर इसने जान दे दी है। गुज़िश्ता 10 घंटों से इसकी जो लाश है अस्पताल के गेट पर पड़ी हुई है, लेकिन इस अस्पताल इंतजामी की न्यायालय और न्यायालय की जो दास्तान है वो लाश अभी तक गेट पर पड़ी है, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। वजीर सेहत अजरा पेचू साहबा ये दावा करती है कि सिंध की अस्पतालों में सहूलियात मौजूद है। अजरा पेचू साहबा, अगर जैकबाबाद की अस्पताल को देखा जाए तो जैकबाबाद की अस्पताल में ये सहूलत है, अस्पताल के बाहर गेट पर पड़ी है, अस्पताल अमला इसको उठाने के लिए तैयार नहीं है। चिन्योट के कई इलाकों में सीवरेज सिस्टम तबाह होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बल्दिया इंतजामिया किसी काम पर तवज्जो नहीं दे रही। मजीद जानेंगे उमर सज्जाद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चिन्योट के मोहल्ला दिलखुशाब में मौजूद हूँ। दिलखुशाब, लाहौरी गेट, पुरन प्लाद, मुश्की शाह उमर रोड समेत दीगर चिन्योट शहर और गिरदोनवा के इलाकों में जो है सीवरेज सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पर नकारा हो गया है। सीवरेज सिस्टम बंद हो जाने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर खड़ा हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। इसी तरह गंदगी के ढेर है, पानी का रोज पानी जो है इधर खड़ा हो जाता है, गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। स्कूल के बच्चे जाते हैं, उनको भी बहुत परेशानी होती है। आता कि आदमी कोई मर भी जाए उसका जनाजा भी लेके जाना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग बहुत परेशान है। 2 साल से लेकर इधर कोई चक्कर भी नहीं लगा था। ये गवर्नमेंट ने पार्क भी इधर बनाया था, उसका भी सारा ये बुरा हाल है, टूट फूट का शिकार है। ये आप सामने देख रहे हैं कितनी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सब बहुत मुश्किल है। वजीर आला पंजाब और सेक्रेटरी बल्दिया से मुतालबा किया है कि बल्दिया के खिलाफ फौरी तौर THQ अस्पताल में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मुकामी शख्सियात समेत शहरियों ने शिरकत की। राना मोहम्मद नफीस अली कादरी की ये रिपोर्ट देखते हैं। आरीवाला में भी सरकारी सतह पर अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से आरीवाला के तहसील अस्पताल में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस रूह परवर महफिल में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सियासी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नात खानों ने दरबार रसालत में गुलहा अकीदत पेश करके महफिल में समा बांध दिया। कोई भी हिसाब नहीं, तू दिखते तेरे गुलाम दा जवाब नहीं। उलमा इकराम ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। महफिल के अख्ताम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम के नजराने पेश किए गए और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। नबी सरवर को सब मिल के दरूद की लड़ियां। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर मकली में फ्रूट डे मनाया गया। स्पेशल बच्चों को फलों के फवाइद से आगाही दी गई। ठट्टा से अमरलाल की रिपोर्ट देखते हैं। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर मकली में फ्रूट डे मनाया गया। तकरीब में स्पेशल बच्चों को फ्रूट और उसके अहमियत के हवाले से आगाही भी दी गई। आज ये फ्रूट डे जो हमने मनाया है ताकि हम अपने बच्चों को ये शऊर दे सकें कि भाई फ्रूट की अहमियत हमारे लिए क्या है। स्पेशल बच्चों में फ्रूट के खाने का मुकाबला भी हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल नदीम इब्राहिम ने कहा है कि फ्रूट डे मनाने का मकसद स्पेशल बच्चों में फ्रूट के हवाले से आगाही फराहम करना। बच्चों की एक्टिविटीज देख के कि वो किस तरह आज फ्रूट डे पे जो है वो फलों की पहचान कर रहे थे और किस तरह से वो एक्टिविटी में शेयर कर रहे थे। यहाँ पर इस सेंटर में नदीम इब्राहिम साहब जो काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। डीओ एजुकेशन नसीर मेमन और सोशल वेलफेयर ऑफिसर खुदा बशीर बैरानी का कहना था कि इस तरह के सरगर्मी में बच्चों में फ्रूट, उसकी अहमियत के फवायद के मुत्तफ़िक़ आगाही पैदा करना हो। पाक फौज के शोहदा से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। स्वाबी के फरोश खान साइकिल पर सफर करके निशान हैदर नाइक सैफ अली खान के मजार पर नकियाल पहुंच गए। अमनास खान की रिपोर्ट देखते हैं। ये हैं 58 साला अजी फरोश खान, जिन्होंने सवाबी से निकियाल तक का सफर साइकिल पर तय किया। सफर का मकसद निशान हैदर नायक सैफ अली खान के मजार पर हाजिरी देना है। साइकिल पर सफर तय करके ये बाबा पाक फौज के शोहदा के मजारात पर जाते हैं।
मकसद है कौम के शहदा को खराज तहसीन पेश करना और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना। इस मकसद के लिए मैंने 2015 से एक जदोजहद शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने पाकिस्तान के तमाम निशान हैदर हीरोज को भी टच किया और पाकिस्तान के कोने कोने में अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम पहुंचाया। आज मेरा ये टूर सैफ अली जंजुआ शहीद के मज़ार पे जाके ख़त्म होगा। इनका एक अजीज एक दहशतगर्द हमले में शहीद हो गया था, जिसके बाद उन्होंने जिंदगी में तैयार किया था कि वो पाक फौज के शोहदा की यादगार पर जाएंगे और अमन का पैगाम साइकिल पर लेकर पूरे पाकिस्तान में सफर करेंगे। मसलसल सफर तय करके ये यहाँ तक पहुँचे हैं। खाने का सामान भी उन्होंने साथ रखा हुआ है। रास्ते के मुताबिक ही वो सफर तय करते हैं और जहाँ रात पड़ जाए वहाँ रुक जाते हैं। अज़्म और हिम्मत जवां हो तो राह की रुकावटें मंजिल से दूर नहीं कर सकती। यही कहानी है बाबा फेरोज खान की, जिन्होंने सैफ अली शहीद जंजुआ के मज़ार पर हाजिरी देने का अज़्म लिया। कैमरामैन सदीर अहमद के साथ इमनाज खान, आज न्यूज, आजाद कश्मीर। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से ग्रैंड जामे मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। मारूफ नात खानों ने गुलहा अकीदत पेश किया। लाहौर की ग्रैंड जामिया मस्जिद बहरिया टाउन में मुनक्किदा महफिल मिलाद की तकरीब में नात ख्वान हजरात ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर गुलहाय अकीदत पेश किए। मारूफ नात ख्वान हजरात की खूबसूरत आवाज और दिलसोज कलाम ने महफिल में समा बांध दिया। बहरिया टाउन इंतजामिया का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया है। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना हर साल मनाने के लिए बहरिया टाउन महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको हर साल बड़े अच्छे और अहसन तरीके से मनाते हैं। अल्लाह हमें इसमें इस छोटी सी अपनी खिदमत में अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सैयद मुकद्दस काज़मी, आबिद हुसैन ख्याल, प्रोफेसर रऊफ अहमद रूफी, शहबाज कमर अफरीदी और दीगर नात ख्वां हजरात ने महफिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश किया। और यहाँ आपको बताएं कि वसीम खत्री रिकॉर्ड 9वीं बार कौमी स्क्रैबल चैंपियनशिप बन गए। टॉप फीमेल प्लेयर की ट्रॉफी 7 साला मनाल अशर के नाम रही। नेशनल स्टेडियम कराची में खेली गई 3 रोजा चैंपियनशिप में वसीम ने 27 में से 20 गेम जीतकर टाइटल अपने नाम किया। वसीम खत्री को इस साल अपने ही शागिर्दों के खिलाफ सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। एजाज के दिफा में नाकाम सैयद इमाद अली 18 गेम जीतकर दूसरे और साबिक कौमी चैंपियन हशाम हादी खान तीसरे नंबर पर रहे। टॉप फीमेल प्लेयर की ट्रॉफी 7 साला मिनाल अशर ने जीती। मिनाल ने चैंपियनशिप में शरीक 7 खवातीन खिलाड़ियों को शिकस्त से 2-4 किया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का।